हेलो सेमेस्टर 2। हम लोग अभी अपना यूनिट देख रहे हैं 7 पेपर 5 का, जिसमें वाइटामिन्स के बारे में है। वाइटामिन्स जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 भाग में डिवाइड किए हुए हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमारा कंप्लीट हो चुका था, वाटर सॉल्युबल हम लोग देख रहे हैं। इसमें विटामिन सी देख चुके हैं। अब बी ग्रुप स्टार्ट हो रहा है हमारा आज से। विटामिन बी ग्रुप में हमारा सबसे फर्स्ट विटामिन है विटामिन B1, जिसको थायमिन भी कहते हैं। थायमिन ऑल्सो नोन एज थायमिन और विटामिन B1 is a vitamin found in food and manufactured as a dietary supplement and medication. Vitamin B1 is a water-soluble vitamin, as are all vitamins of the B complex. बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जितने और दूसरे विटामिन्स हैं उनकी तरह ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैरिड होते हैं। वॉट एवर द बॉडी डज नॉट यूज इज एलिमिनेटेड इन यूरिन। B1 is a colorless compound. It is soluble in water and insoluble in alcohol. Thiamine decomposes if heated. हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है। थायमिन प्लेज अ की रोल इन इंट्रासेलुलर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। दैट थायमिन इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन ऑन आर्ट्रियल स्मूथ मसल सेल proliferation. Thiamine cannot be stored in the body. However, once absorbed, the vitamin is concentrated in muscle tissue. It is necessary for the growth, development and function of cells. ये था हमारा विटामिन B1 का इंट्रोडक्शन यानी थायमिन का। अब हम देखेंगे इसके मेन फंक्शंस क्या है, मेन फीचर्स क्या है। फंक्शंस नंबर 1, थायमिन हेल्प्स द बॉडी सेल्स चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी. The carbohydrates provide energy for the body, especially the brain and the nervous system. Now next point, thiamine also play a role in muscle contraction and conduction of nerve signals. Now number 3, thiamine is essential for the metabolism of pyruvate. Number 4, these all are functions of vitamin B1 or thiamine. Vitamin B1 helps in releasing hydrochloric acid, which is fundamental for a thorough digestion of good food bits. Vitamin B1 helps in releasing hydrochloric acid, which is fundamental for a thorough digestion of food bits. Now next function, the thiamine is well known for slowing down the development of Alzheimer's. Thiamine is also famous for improving concentration power and memory. It is also used to manage numerous nervous system dysfunction. The B1 also helps in increasing energy, combating chronic tension and पॉसिबली इवन प्रिवेंटिंग मेमोरी लॉस। यानी ब्रेन से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उनको जो प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है और मेंटेन किए रहता है ब्रेन के सिस्टम को। B1 इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग एपिटाइट को भी इम्प्रूव करता है। इट्स हेल्प मेंटेन मसल टोन along the walls of the digestive tract, a place where much of the immune system is located. Now next function, vitamin B1 helps minimize the risk of developing a particular brain disorder, a condition characterized by nerve damage, reflex muscle movement, fatigue and difficulty walking. क्योंकि ये सब ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन उनको एक मैसेज भेजते हैं जिसके थ्रू वॉकिंग, च्यूइंग, हमारी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो इससे मूवमेंट होते हैं। Now, vitamin B1 are typically referred to as the anti-stress vitamins.
Vitamin thiamine can help defend against anxiety and depression as well as improve mood owing to its positive impact on the brain. मूड को भी ये इम्पैक्ट करता है. Now next function, B1 help minimize the risk of developing vision problems such as glaucoma and cataracts. विज़न पे भी ये इफ़ेक्ट करता है विटामिन B1 यानी हमारा थायमिन. ना ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ विटामिन B1 एंड थायमिन के क्या क्या फंक्शन है वो हम लोगों ने देखा. अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन B1. किन चीज़ों से, किन खाने की चीज़ों से हमें विटामिन B1 प्राप्त होता है या किन से उनकी पूर्ति की जाती है, किन खाने की चीज़ों में पाया जाता है. लीवर एंड यीस्ट आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ थायमिन. व्हीट जर्म, wheat grain, cereals, pork, rye and kidney beans are also excellent sources of this crucial vitamin. This list also includes, इस लिस्ट में और हमारे क्या क्या है, पोटैटोज, मशरूम्स, ट्यूना, स्पिनच, सनफ्लावर सीड्स, जो ट्यूना फिश होती है वो, सनफ्लावर सीड्स, ग्रीन पीस, एग प्लांट, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, spinach and lettuce. Overlooking or excess refrigeration can destroy the thiamine content. Overcooking और excess refrigeration यानी बहुत अधिक ताप या बहुत अधिक सांद्रता, बहुत अधिक निम्न ताप में ये इसका जो थायमिन का जो अपना कंटेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. विटामिन B1 डोजेस. विटामिन B1 की क्या डोजेस, कितनी मात्रा डेली रिक्वायरमेंट होती है एज अ पर्सन. एक हम यहाँ इन्फेंट से बड़े तक में देखेंगे, एक एडल्ट में कितनी डोज चाहिए और एक इन्फेंट में कितनी चाहिए एक बच्चे से. नाउ इन्फेंट, एक इन्फेंट को कितनी डोज चाहिए, 0.2 mg मिलीग्राम, 0.2 mg. इन्फेंट को 7 to 12 मंथ्स वाले बच्चों को 0.3 mg. बिलो 6 मंथ तक के बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी से 6 मंथ्स तक के चाहिए 0.2. एंड अबव जो 7 मंथ से 12 मंथ्स तक के बच्चों यानी 1 ईयर के बच्चों को चाहिए 0.3 mg. चिल्ड्रेन 1 to 3 ईयर के चाहिए 0.5 mg और 4 to 8 ईयर के बच्चों को चाहिए 0.6 mg. बॉय, ये फिर यहाँ पे मेल एंड फीमेल के करके हम देखेंगे. बॉय हैं उनको 9 to 13 ईयर के जो बॉय हैं उनको 0.9 mg. मेन 14 एंड ओल्डर जो 14 ईयर एंड अबव 1.2 mg. गर्ल जो हैं जो 9 to 13 ईयर हैं उनको 0.9 mg मिलीग्राम. एंड गर्ल्स जो 14 to 18 ईयर की हैं उन्हें 1 mg अधिक मात्रा में ये डोज. एंड वुमेन जो है ओवर 18 ईयर जो 18 वर्ष से अधिक ऊपर की हैं उन्हें 1.1 mg मिलीग्राम ये डोज पर डेली रिक्वायरमेंट होती है. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 1.4 mg एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए 1.5 mg. 5 mg तक इसकी डोजेज़ जब बहुत अधिक इसकी डेली में कमी हो रही है तो वो डोजेज़ एज अ डॉक्टर रेफरेंसेस वो दी जाती हैं. डेफिशिएंसी, ये था हमारा रिसोर्सेज. फिर उसके बाद क्या डोजेज़ हैं. अब हम देखेंगे डेफिशिएंसी. जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है तब उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है. विटामिन B1 डेफिशिएंसी इंक्लूड वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, मेमोरी लॉस, स्लिप लॉस, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन एंड टेंडरनेस ऑफ काफ मसल्स. ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि थायमिन का ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में और इन सब में बहुत ज़्यादा मेन रोल है. याददाश्त में, आपकी बॉडी को मेंटेन करने में, वर्क कराने में. तो इसकी कमी की, इसकी डेफिशिएंसी से इन सब चीज़ों के लक्षण होने स्वाभाविक है. इफ़ ओवरलुक्ड for long period of time, a vitamin B deficiency can lead to a condition called beriberi. अगर बहुत समय तक आफ्टर
मतलब वेरी लॉन्ग टाइम तक अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, जितनी नॉर्मल मात्रा में चाहिए उतनी भी पूर्ति नहीं होती है, तब ये बेरी रोग के रूप में परिणत हो जाता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ट, ब्रेन एंड नर्व एबनॉर्मेलिटीज़। हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती, ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता प्रॉपर। थायमिन डेफिशिएंसी कैन कॉज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व विच मे रिजल्ट इन ब्लरी और लॉस ऑफ विज़न, जिससे आँखों से दिखना भी बंद हो सकता है, ब्लरी, धुंधलापन भी आता है। ये था हमारा आज विटामिन B1 थायमिन।